Hello guys, how are you? Hope you guys are good. Welcome to Aspiring Classes. Today we will discuss poem Amanda written by Robert Klein. Now I will give you an introduction about the poem. Every child feels that she is controlled and instructed not to do one thing or another. हर बच्चा ये फील करता है कि उसको किसी भी काम को करने के लिए या तो कंट्रोल किया जाता है या इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपको ये काम ऐसे करना है. The child feels that his her freedom is being curtailed. curtail मैंने कम करना. और बच्चा ये फील करता है कि उसके ऊपर जो पाबंदी लगाई जाती है उसके द्वारा जो उसकी स्वतंत्रता है उसको कम कर दिया गया है. In this poem, the poet Robin Klein expresses the view of a small girl Amanda. इस पोएम के अंदर जो कवि है रॉबर्ट क्लीन वो एक छोटी लड़की अमांडा उसके जो व्यू है लिबर्टी इन लाइफ तो जीवन में जो स्वतंत्रता है उसके प्रति जो विचार है उसको दिखाया गया है. हाउ डज द गर्ल रिएक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज अपॉन हर बाय हर पेरेंट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग. रिस्ट्रिक्शन होती है जो पाबंदियां इम्पोज मैंने थोपना जो पेरेंट्स के द्वारा पाबंदियां बच्चों पे लगाई जाती है उसके प्रति बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है उसको इसमें दिखाया गया है. Stanza 1. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulder, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. When the poem begins, we find that Amanda is biting her nails. जब पोएम स्टार्ट होती है तब हम ये देखते हैं कि अमांडा अपने नेल्स को मुंह से काट रही है. She is hunching her shoulders और वो अपने कंधों को भी उचका रही है. She is sitting in a slouching posture और वो एक slouching posture में बैठी हुई है. Look at the picture. इस पिक्चर के अंदर आप ये देख रहे हैं कि ये बच्ची slouching posture के अंदर है और अमांडा भी इसी प्रकार से बैठी हुई है. That's why the speaker asked her to behave normally. इसलिए जो स्पीकर है वो अमांडा को कहता है कि वो अच्छे प्रकार से बिहेव करे. He asked her not to bite her nails और वह उसको कहता है कि वह मुंह से अपने नाखूनों को मत चबाए एंड hunch her shoulder और अपने कंधों को मत उचकाए. She should sit up straight और उसे बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए. Bite मैंने निबल, straight मैंने proper, slouching मैंने crouching, hunch मैंने race. Stanza 2. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. In this line, the sea is portrayed as peaceful and beautiful in the poem. इस कविता के अंदर जो समुद्र है उसको बहुत ही शांत और सुंदर दिखाया गया है. If Amanda is a mermaid, अगर अमांडा एक जलपरी होती, she could move about in the green sea blissfully. blissfully मैंने प्रसन्नता पूर्वक, तो वह इस समुद्र के अंदर प्रसन्नता पूर्वक विचरण कर सकती थी. Languid, relax and peacefully, inhabitant, dweller, mermaid, water fairy, drifting blissfully, moving slowly, happily. Stanza 3. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. In this line, the speaker asks Amanda to finish her homework. इन लाइन्स के अंदर जो स्पीकर है वो अमांडा को अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए कहता है. Then he asks her if she has cleaned up her room और तब वह उससे पूछता है क्या उसने अपने रूम को क्लीन कर दिया है. Finally he finds that her shoes are not clean और अंत में वह देखता है कि उसके शूज भी साफ नहीं है. Even though he had asked her to clean them, यहाँ तक कि उसने उनको जूतों को साफ करने के लिए उसे पहले ही कहा था. Tidy मैंने clean. Stanza 4. I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden. The freedom is sweet. In these lines, Amanda says that she is an orphan. इन लाइन्स के अंदर अमांडा कहती है कि वह एक orphan है. orphan होता है जिसके माता पिता दोनों ही नहीं होते, उसको हम orphan कहते हैं. She is free and roams the street. वह फ्री है, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं है. एंड रोम द स्ट्रीट और वह गलियों में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर सकती है, घूम सकती है. देयर इज ए सॉफ्ट डस्ट इन द स्ट्रीट अंडर हर फीट. उसके पांव के नीचे स्ट्रीट गलियों में सॉफ्ट डस्ट जो मुलायम धूल है.
She walks silently and creates pattern on the soft dust with her bare feet. She walks silently, वे चुपचाप घूमती हैं and create pattern, pattern में डिजाइन बनाती है ऑन द सॉफ्ट डस्ट, जो कोमल धूल होते हैं उसके ऊपर विद हर बेयर फीट, बेयर फुट होती है जब हम अपने पैरों में किसी प्रकार की कोई भी चप्पल या जूते नहीं पहनते तो हम उसको बेयर फीट कहते हैं। वह अपने नंगे पाँव से धूल के ऊपर एक पैटर्न ड्रॉ करती है। शी थिंक्स दैट साइलेंस इज गोल्डन, और वह सोचती है कि जो खामोशी है वह गोल्डन है एंड फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता है वो बहुत ही प्यारी है। Orphan, one whose parents died, roaming, wandering, pattern make design, hers to silent, barefoot, shoeless. Stanza 5. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? In these lines, the speaker asks Amanda not to eat chocolate. इन लाइन्स के अंदर जो स्पीकर है वो अमांडा को चॉकलेट नहीं खाने के लिए कह रहा है। इट इज बिकॉज शी हैज हैड एक्ने ऑलरेडी। इसका रीजन यह है कि जो अमांडा है उसके फेस पे पहले ही पिंपल्स हुए हैं। ईटिंग चॉकलेट माइट क्रिएट मोर पिंपल, अगर वह और चॉकलेट खाएगी तो उसके फेस पे और ज्यादा पिंपल्स हो जाएंगे। इसलिए जो स्पीकर है वो अमांडा को सजेस्ट करता है कि वह चॉकलेट नहीं खाए। अगर वह चॉकलेट नहीं खाएगी तो उसके फेस पे जो एक्ने है वो और ज्यादा नहीं होंगे। अमांडा लिसन टू द स्पीकर विदाउट रेजिंग हर फेस। जो अमांडा है वो स्पीकर की बातों को सुनती तो है लेकिन वो अपने फेस को ऊपर नहीं करती। एक्ने माने पिंपल्स। Stanza 6. I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. इन दिस लाइन्स के अंदर रेपुंजल के बारे में बताया गया है। रेपुंजल कौन है? रेपुंजल इज द हीरोइन ऑफ ए फेरी स्टोरी। जो हमारी परी की कहानियां होती है उसकी हीरोइन है रेपुंजल, उसका नाम है रेपुंजल। और जो अमांडा है वो अपने आप को रेपुंजल से कंपेयर करती है। शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल विद लॉन्ग हेयर। जो रेपुंजल है वो बहुत सुंदर है और उसके बाल भी बहुत सुंदर है। शी वॉज लॉक्ड अप इन अ टावर बाय ए विच, विच होता है जादूगरनी, और जो रेपुंजल है उसको एक जादूगरनी के द्वारा एक टावर पे बंद कर दिया जाता है। इन द स्टोरी ए हैंडसम प्रिंस कम एंड इज एबल टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द टावर टू मीट हर। और इस कहानी में एक प्रिंस आता है और जो टावर पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। ही कॉल्स आउट टू हर, और वह रेपुंजल को बुलाता है, रेपुंजल रेपुंजल लेट डाउन योर लॉन्ग हेयर, अपने बालों को नीचे गिराओ। इन हर इमेजिनेशन, जो अमांडा होती है वो इमेजिनेशन करती है कि वो खुद एक रेपुंजल है हु लेड ए पीसफुल लाइफ, और जो बहुत ही शांतिपूर्वक जिंदगी व्यतीत कर रही है। इस स्टोरी के अंदर जो अमांडा है वो अपने आप को रेपुंजल से कंपेयर करती है। शी प्रोमिसेस नेवर टू लेट डाउन हर ब्राइट हेयर, लेकिन जो अमांडा है वो ये कहती है कि वो अपने बालों को, सुंदर बालों को कभी भी नीचे नहीं गिराएगी। Stanza 7. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. The speaker thinks that Amanda is sulking and moody. जो स्पीकर है वह सोचता है कि जो अमांडा है वो एक मूडी लड़की है जो अपने मूड के अकॉर्डिंग ही कार्य करती है। He thinks that Amanda is always moody, और वह सोचता है कि अमांडा हमेशा ही मूडी रहती है, अपनी मस्ती में मस्त रहती है। He asks her not to sulk because he is afraid, और वह कहता है कि अमांडा को इतना भी अपने आप में मस्त नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसे डर है कि लोग ये सोचेंगे कि he is a nagging Amanda, क्योंकि अमांडा एक झगड़ालू लड़की है। Sulking, getting bad tempered, nagged, quarreled. Now we discuss the central idea of the poem. Every child feels that she is controlled and instructed not to do one thing or another. और बच्चा ये फील करता है कि उसको अपने पेरेंट्स के द्वारा कोई भी काम करने के लिए या तो कंट्रोल और या उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। कि हर बच्चा ये फील करता है कि जब वो कोई भी काम करता है तो पेरेंट्स उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लगाते हैं या उसको कहते हैं कि ये काम आपको ऐसे करना है। द चाइल्ड फील्स दैट हिज हर फ्रीडम इज बीइंग कटेड, और बच्चों को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती कि कोई भी पेरेंट्स या कोई भी बड़ा उनकी किसी भी काम में इंस्ट्रक्शन दे, तो उनको ऐसा फील होता है कि उनकी जो आज़ादी है उनसे उनको कम कर दिया है।
In this poem, the poet Robin Klein expressed the view of a small girl Amanda. इस कविता के अंदर जो कवि है रॉबिट क्लीन, वो एक छोटी लड़की अमांडा है, उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उसके विचार है स्वतंत्रता जिंदगी में जो लिबर्टी है उसके प्रति वो एक्सप्रेस करता है। How does the girl react to the restriction imposed upon her parents is very interesting. कि किस प्रकार से जो पेरेंट्स है उसके जो रिस्ट्रिक्शन है जो बच्चों के ऊपर थोपे जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन मीन्स पाबंदियां, इम्पोज मैंने थोपना, जब पेरेंट्स की रिस्ट्रिक्शन बच्चों के ऊपर थोपे जाते हैं तो वो किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। इस स्टोरी के अंदर यही बताया गया है कि जब बच्चों के ऊपर पेरेंट्स के रिस्ट्रिक्शन थोपे जाते हैं तो वो लड़की किस प्रकार से रिएक्ट करती है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताया गया है। द सेंटर आइडिया ऑफ द पोम इज दैट चिल्ड्रन लव फ्रीडम। और इसका सेंटर आइडिया क्या है, पोएम का सेंटर आइडिया यही है कि जो बच्चे होते हैं उनको फ्रीडम पसंद होते हैं, उनको ये सब पसंद नहीं होता कि जो वो काम करते हैं उसके बीच में कोई भी उनको कंट्रोल करे या कोई भी किसी प्रकार की इंस्ट्रक्शन दे। दे डोंट वांट मैनी रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर एक्टिविटीज। सेकेंडली, दे हैव ए ड्रीम वर्ल्ड ऑफ देयर ओन। और उनका खुद का एक ड्रीम वर्ल्ड होता है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने सोच रखा होता है कि हमें ये करना है ये करना है, तो वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में ही रहना पसंद करते हैं। दे लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन दैट ड्रीम वर्ल्ड। और वो अपना मोस्टली टाइम अपने उस ड्रीम वर्ल्ड में रहना ही पसंद करते हैं। बट द एल्डर्स आर ऑलवेज डिस्ट्रॉइंग दैट ड्रीम वर्ल्ड बाय ऑर्डरिंग देम अराउंड। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं जो बड़े होते हैं वो उनके उस ड्रीम वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जब वो अपनी रिस्ट्रिक्शन बच्चों के ऊपर लगाते हैं और बच्चों को वो चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हैं।